नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट फाइनेंशियल एजुकेशन यूट्यूब चैनल stockincome.in पर। माय नेम इज़ आलोक वर्मा और मैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स में एक रेगुलर एक्टिव ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ। एंड वी हैव दिस सीरीज गोइंग ऑन वेयर इन एवरी वीक हम एक आउटलुक देते हैं आने वाले वीक के लिए इंडियन मार्केट्स के बारे में। मैं इसको इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं अपने काम के लिए तो मार्केट्स को एनालाइज करता ही हूँ और वही व्यू मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सो बात करेंगे आने वाला वीक जो कि 2 मई से स्टार्ट होने वाला है और 6 मई तक का ये जो एनालिसिस है। बिफोर वी गेट इनटू मोर डिटेल, अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ जो मेरा एनालिसिस है। इट्स नॉट एन एडवाइस टू बाय और सेल एनीथिंग। अगर आपको कुछ भी खरीदना या बेचना है प्लीज़ एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कांटेक्ट करें या खुद का अपना रिसर्च करें, उसके बेस पर अपने बेस पर रिस्क लें और डिसीजन लें। दैट इज़ द बेस्ट, राइट? ओके, सो लेट्स गेट गोइंग। As you know, we've been analyzing and markets for many weeks now, and also sharing this outlook on this channel. Our outlook has largely been spot on. In fact, last week it was precisely spot on, right? We said markets will be in the range of 17,400 or 17,460, maximum 17,600, and on the lower side 17,000. I'm talking Nifty levels, and that's exactly where market was. It went briefly before 17,000 for a day, but immediately came back, right? So similarly, ditto for Bank Nifty, our analysis was spot on. Let's see what we have thought for this week. So as always, I analyze things based on news or data, items, aspects, and the technical aspects. So how have things been? इस हफ्ते न्यूज़ और डेटा की बात करें, अगर हम इंडियन इंडाइसेस को देखें तो Indian indices largely unchanged, and Nifty was down by about 0.4% and Bank Nifty was almost unmoved, actually up by 0.12%, right? So but this gives के picture के market वही का वही रहा। Actually there was a huge volatility. In fact कल फ्राइडे को भी इवनिंग में बहुत सेलिंग आया इन द लास्ट मिनट्स, राइट? पहले 2 बजे सेलिंग आया, कुछ रिकवरी हुआ, फिर 3 बजे बहुत सेलिंग आया। इट्स बीन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम स्पेशली फॉर ट्रेडर्स. During this week, Nifty has moved significantly and violently, and so has Bank Nifty moved. But end-to-end basis, weekly end basis, there is not much movement. But the trouble spot is here, the US indices. S&P 500 is down by almost 4%. That is big, and Nasdaq is down by 3.27%. And there is more worry. These figures tell you a story. They hide some things also. What are they hiding is Nasdaq एक हफ्ते का हमको दिख रहा है 3.27% डाउन है, पर करीब 4% तो कल ही डाउन हुआ, कल रात को आफ्टर इंडियन मार्केट्स क्लोज्ड. सो there is a worry for Indian markets because US markets are a mother market for the world, and there seems to be a worry. मंडे को इंडियन मार्केट में इस बात का काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है. ऐसे S&P डाउ जोन भी काफ़ी डाउन था, 3 to 4%, अराउंड 3% डाउन रहे कल में, राइट? सो there is fear in the world markets as it seems. FI और DI बाइंग की बात करें तो FIs have continued to sell pretty aggressively, I would say. One day, after many days, on one day they were net positive buyers of around 700 crores. Rest all days they have been selling heavily, including yesterday, which was Friday. So there is not much good news on that front. DIs have been supporting, but not as much as FIs have been selling. So data figures are in front of us. India VIX, last week I said India VIX last week also had increased from the previous week, and I had said that it's closing on a high, towards a high, and it's showing a tendency to increase, and that has also come true this week. The last week gone by, from 25th April onwards, the VIX has increased by another 5.78%. So it is now at 19.41%, which is not extremely high. बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, but ऊपर की तरफ ही है, थोड़ा सा इसमें टेंशन वाली बात तो है. इट इज़ शोइंग फियर इन द मार्केट. सो विक्स इज ऑन अपवर्ड ट्रेंड. रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं. लास्ट वीक के रिजल्ट्स जो मेन रिजल्ट्स हैं आपके सामने हैं. Most of the companies have reported either in line or slightly below expectations. Some have also reported slightly above expectations, right? Company like Ultratech Cement slightly above expectation.
बट देन नो कंपनी सीम टू हैव रिपोर्टेड वेरी फैबुलस रिजल्ट्स. आईसीआईसीआई बैंक जिसके रिजल्ट लास्ट वीक आए थे, दे गिव वेरी गुड रिजल्ट्स, बट उसके बावजूद भी शेयर डाउन है आईसीआईसीआई बैंक का. और इन सब कंपनीज का भी ऑलमोस्ट सबका, किसी का भी रिजल्ट आता है, नो कंपनी हैज बीन एबल टू रियली एक्साइट द मार्केट्स. रिजल्ट आने के बाद इनवेरिएबली शेयर नीचे ही जा रहा है, प्राइस नीचे ही जा रहा है, एक्सेप्ट देयर वन और टू एक्सेप्शंस. अल्ट्राटेक का शेयर नीचे नहीं गया, आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी शेयर नीचे नहीं गया रिजल्ट आने के बाद. बट इवन गुड रिजल्ट्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक्स, मार्केट हैज रियली नॉट लाइक्ड इट इन सम वेज, इन एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस. सो शेयर नीचे ही जा रहा है, थोड़ा सा तकलीफ दिख रहा है उस एरिया में. एक्सक्यूज मी. Coming week is again full of results. So there are HDFC, Britannia, M&M Financial Services. You can see the list on the screen, and it's a good idea to keep an eye on these things, right? If market is not rewarding good results, imagine what happens if some company comes up with below expectations. Market is likely to thrash that company down. So keep your eyes on, keep your barometers up. बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ आने वाली है आने वाले वीक में, विच इज़ ऑन 4th of May, इज़ LIC IPO. बहुत देर से इंतज़ार हो रहा है इसका. गवर्नमेंट का लास्ट ईयर का टारगेट था, समहाउ नहीं कर पाए डिसइन्वेस्टमेंट का, अब कंफर्म्ड है. LIC IPO इज़ गेटिंग लॉन्च फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम 4th of May टू 9th of May. 9th of May को क्लोजिंग होने वाला है. क्विक स्नैपशॉट अबाउट LIC, राइट? क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन है, क्या खास है इस कंपनी में? इट वॉज क्रिएटेड इन 1956, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया. बिगेस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है. सेकेंड मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड है BFSI सेक्टर में, बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर में. सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट डिजायर्ड ब्रांड है. नेट एसेट्स ऑफ मोर देन 32 लाख करोड़. It's a global giant with operations in 14 countries, and it's the 5th largest insurer globally in terms of gross written premiums, right? And interestingly, AUM, the assets under management of LIC, is 3.3 times the AUM of all other private life insurance companies in India put together. बाकी सब life insurance company इंडिया में जितनी हैं, उनके सारे assets under management अगर जोड़ भी दिए जाएं, उससे भी 3.3 times LIC का asset under management है. So it's a big giant in the Indian context, at least globally also. IPO आ रहा है करीब 902 रुपये से लेकर 949 रुपीज़ तक, 949 रुपये की रेंज में. देर इज़ अ डिस्काउंट, वेरी गुड थिंग, डिस्काउंट ऑफ 45 रुपीज़ फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स. सो यू हैव टू टेक योर एनालिसिस. इन माई ओपिनियन वैल्यूएशंस आर ऑल्सो वेरी फेयर. तो आपको अपना सॉरी फैसला लेना है. बट आई थिंक आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस IPO. लुक्स लाइक अ गुड बेट टू मी एट लीस्ट. लेट्स मूव ऑन. क्रूड ऑयल थोड़ा सा तकलीफ फिर दे रहा है. देर इज अ जंप ऑफ अबाउट 2% फ्रॉम द लास्ट वीक लेवल्स, राइट? सो लेट्स सी हाउ इट मूव्स ऑन. बट क्रूड ऑयल आई थिंक मैंने 102.17 लिखा है, 103.17 होना चाहिए. So it's okay, but point is it's going up, the direction is up, and India especially को तकलीफ आता है इंडिया को अगर क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है, because this is the largest import item in our list. So on that front also we might get a bit of hit. COVID हम परेशान हो गए हैं कोविड से, पर अभी तक ये जा नहीं रहा है. इंडिया में भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट चाइना में the news is there's lot of problem being caused by COVID again. Many cities are under lockdown and people are struggling, but they're trying to manage, they're doing their best. India too is showing higher numbers. अभी तक कोई पैनिक नहीं है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, but we need to be careful, and these things, you know, we know how it happens. It impacts everyone, right? आइए बात करते हैं टेक्निकल्स की. न्यूज़ तो हमने देख लिया, मेन एस्पेक्ट्स हमने देख लिए. टेक्निकल्स की हम बात करें तो निफ्टी के लेवल्स, अभी निफ्टी ऊपर को अगर हम बात करें तो निफ्टी 17,460 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो लास्ट वीक भी था वो टच नहीं हुआ. नेचुरली इट होल्ड्स. अगर उसको क्रॉस कर भी जाए तो 17,600 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है. तो ये दोनों लेवल से ऊपर जाने का उम्मीद नहीं है निफ्टी की. ऑन द लोअर साइड देयर इज अ सपोर्ट एट 17,000 एंड 16,800. लुक्स लाइक 17,000 तो मंडे मार्केट खुलते ही जाएगा. That's how it looks like, right? SGX Nifty is significantly down, so 17,000 may not hold, but 16,800 people are expecting to hold. Below that is 16,400, 200 पे भी थोड़ा सा है, और अगर वो भी टूट गया तो 15,600 पे नेक्स्ट सपोर्ट बनता है आपको उस रीजन में. So let's see how it pans out.
the trend seems to be little down, little bearish. ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट की बात करें निफ्टी के इस वीक की, तो अगर पुट्स की बात करें तो पुट्स 17,000 पे काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है, बट आई थिंक दीज गाइज विल रन फॉर कवर. ये अनवाइंडिंग होने वाला है मंडे मॉर्निंग को ही, राइट, बिकॉज 17,000 इज लाइकली टू बी हिट इन माई ओपिनियन. So these guys will run for cover, and next big interest area is around 16,200. राइट, यहाँ पर काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है. 16,500 पे भी है, पर 16,200 पे तो इंटरेस्ट यहाँ पर है निफ्टी का. पुट्स का कॉल की बात करें तो देखिए ATM के बिल्कुल पास एकदम से ओपन इंटरेस्ट जंप किया है 109%. इट हैज इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट जंप्ड for 17,300, which is very close to ATM price, and then there is a large open interest at 18,000. This I think is true hedging. It's not showing call shorting positions. It's true hedging. उसकी वजह से इंटरेस्ट ज़्यादा. Otherwise, I don't think anyone expects market to go to 18,000 in the next week. So that's how it is. I have some different chart also for you this time. I pulled out the Nifty weekly chart. इसमें अगर देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आ रही है. ये वीकली चार्ट है निफ्टी का. सी निफ्टी हैज़ मेड वन लोअर हाई एंड देन मेड अ सेकेंड वन लोअर लो एंड देन ऑल्सो मेड सेकेंड लोअर हाई. अब ये क्या है? लोअर हाइज लोअर लोज क्लियरली इंडिकेट्स डाउनवर्ड लॉन्ग टर्म डायरेक्शन. दिस इज अ लिटिल लॉन्ग टर्म चार्ट, वीकली चार्ट है, बट आप ट्रेंड लाइन भी देखेंगे ये नीचे को जा रहा है. सो दो लोअर हाइज बन चुके हैं हेयर एंड एक लोअर लो भी बन चुका है. सो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट. नोबडी नोज, बट लुक्स लाइक चार्ट बेसिस लुक्स लाइक मार्केट इज गोइंग डाउन फॉर अ व्हाइल नाउ. बैंक निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस इसका दिखता है 37,000 या 37,200 पे 37,200, और उससे ऊपर रेजिस्टेंस दिखता है 38,000 पर. ऑन द लोअर साइड सम सपोर्ट सीम्स टू बी इमर्जिंग एट 35,500. नेक्स्ट इज 35,000. I think 35,500 may not hold, but 35,000 might. And below that is 34,000 ka support, which is a strong support level. That is unlikely to be broken. But if God forbid that is broken during the week itself, then market is very likely to go to around region of 32,000. But I don't think it's going there. My sense is market is going to stay between 37,200 to 34,000 for the week. Open interest की बात करें अगर बैंक निफ्टी के, तो उसमें भी पुट ऑप्शंस में 35,000 पे ओपन इंटरेस्ट है, 35,500 पे ओपन इंटरेस्ट है, राइट. सो बट आई थिंक 35,500 माइट दीज गाइज माइट रन फॉर कवर. यहाँ इंटरेस्ट खत्म होने वाला है, शॉर्ट कवरिंग होने वाली है और ये लोग नीचे शिफ्ट करेंगे. दैट्स माई सेंस. ऑन द हायर साइड, ऑन द कॉल साइड 36,500 एंड 37,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है. सो दीज आर द लेवल्स दैट माइट कॉज अ बिट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट. बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट की बात करें तो इसमें भी कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा कि निफ्टी के वीकली चार्ट में हमें दिखाई दिया. ट्रेंड इज डाउन. सो ऑन द होल माय ओन सेंस इज दैट वी आर इन अ bearish mode for a short time, which means maybe 1 or 2 months. My feeling is we might go to the level of 15,700, say 15,600 on Nifty, and from there we might bounce back. LIC का IPO आ रहा है, it's a big IPO. Now typically big IPOs are good reason for excitement, but practical बात करें तो big size IPOs they suck out liquidity. मार्केट से पैसा खींच लेते हैं लोग, बाकी चीज़ें बेच के इन चीज़ों में पैसा लगाते हैं. So typically when a big IPO comes, markets tend to go down. So that is another cause of concern. So IPO LIC I think is listing on 17th of May. It's open between 4th to 9th May, and it might cause market to go down also. So my overall view is bearish. As I always say, I have a right to be wrong, but as of now I said what I see. Thank you for being with us. But before I say bye to you, I have put out the description for my Telegram account in the description. The details are there in the description of this video. Kindly go in there, log in there. A lot of good information is posted there also, all free of cost. So do log in there. And so far as this YouTube channel is concerned, keep loving it, keep sharing it, subscribe if you still haven't. Do comment. I love your comments. That helps me, helps everyone. Share with your friends.